So all of you please join. We will start session soon within a while. So far we are doing redox reaction. Last time we have started balancing up the redox reaction, and today we'll proceed with that same portion. I hope that page is visible to all of you. So today, last time we have discussed balancing reaction by two terms. One is by oxidation number method, and other is by electron ion method. Okay. So today we'll discuss the board examples. So I am taking the very first example of today's. That is, I am balancing with ion electron method, which is also called half reaction method. Okay. So ion reaction method को ही कहा जाता है क्या हमारे पास half reaction method, and I am balancing this one. We have CrO4 2 negative ion that react with 4 times H positive ion, not 4 times, sorry. CrO3 2 negative ion that react with, by the way, SO3 2 negative ion, and that gives us CrOH all 4 1 negative ion, and by the way SO4 2 negative ion. So this is the reaction you have to balance, and this is a typical reaction. So what is said that balance the reaction? What is question? The question is balance the reaction. And by the way, this is ionic reaction. Okay. Taking, he has given a hint, taking place in basic solution. Basic means OH ions. Okay. So taking place in basic solution. हम इसको कैसे बैलेंस करते हैं देखो, and I am balancing it by means of the second method, that is called ion electron method. It is better known as half reaction method. You know that we have to split the reaction here into two parts. One is reduction part, other is oxidation part. So first of all, what to do? सबसे पहले यहाँ पे चार्ज निकाल दो. So apply the charges on each so that you are able to identify. तो अगर क्रोमियम पे चार्ज निकालें तो बताओ अभी यहाँ पे क्रोमियम पे चार्ज क्या होगा? So अगर यहाँ पे निकालें, you can put it X plus 4 times oxygen minus 2, total charge minus 2. So X is equal to, you can say X is equal to minus 2 plus 8. So what is X? X is equal to 6. That means chromium here is 6. Okay, in the first case. Likewise, आप यहाँ पे देखते हो chromium को. So what is charge? You can also calculate here. So basically X plus 4 times OH is 1 negative, total charge is minus 1. So X minus 4 is equal to minus 1.
So x is equal to -1 plus 4, that is equal to 3. ठीक है, तो आपको ये पता चला भाई कि एक तरफ से रिएक्टेंट में क्रोमियम कितना है +6 और एक से कितना हमारे पास +3. तो क्या हुआ क्रोमियम का? So chromium when goes from reactant side to product side, what happened? There is reduction. At the same time, कितने इलेक्ट्रॉन की reduction में यहाँ पे? So there is gain of 3 electrons. So there is first that you identify. So what is chromium here? So chromium itself undergo reduction. So basically chromium is, it is oxidizing agent because it's oxidizer and itself undergo reduction. तो chromium यहाँ पे खुद reduction में जा रहा है, तो मतलब ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. यहाँ पे आपको ये पहचान आना चाहिए. नेक्स्ट आप देखो भाई, यहाँ पे जिससे बात करो मैं SO3 और SO4 की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे भी देखो भाई दूसरा यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने बात की यहाँ पे SO3 की, पहले बेसिक बता रहा हूँ. SO3 टू नेगेटिव, इसमें निकालो यहाँ पे सल्फर का निकालो. सो सल्फर कितना होगा भाई हमारे पास? सल्फर +3 टाइम्स ऑक्सीजन -2, टोटल चार्ज -2. ओके, मैंने S निकाल दिया भाई. सो व्हाट इज सल्फर हियर? -6 is -2 and sulfur is equal to -2 plus 6. So what is sulfur here? +4. Again, when you go here on the other side, so SO4 2 negative. If you find sulfur +4 times oxygen -2, total charge -2. So sulfur -8 is equal to -2 and sulfur is equal to -2 plus 8. So when you say sulfur goes from +4 to +6, what a positive charge? It is called oxidation. And there is loss of how many electrons? 2 electrons. क्या भी loss और gain बराबर है? नहीं है. ठीक है ना? तो आप ये समझ चुके हैं कि हम क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे loss और gain बराबर नहीं है. तो अब हमने ये देखा कि यहाँ पे loss gain बराबर नहीं है. That means we have to multiply with some number. We have to multiply with some number in order to get this. But first of all, we keep the charges in mind. We try to solve it first. This is not a way to solve because we have given the basics here, which is being understand to everyone. अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहला स्टेप ने बताया था, what is first step? If we are doing with ion electron method, that is divide the reaction into 2 halves. So first is, let's say what is reduction half. तो मैं जो पहले बताऊं भाई, यहाँ पे reduction half reaction कौन सी है? तो reduction कौन हो रही है यहाँ पे? क्रोमियम के केस में हो रही है यहाँ पे. ठीक है ना? So you can say CrO4 2 नेगेटिव यही कन्वर्ट कर रहा है इसमें भाई हमारे पास CrOH4 1 नेगेटिव. वो कैसे? यहाँ पे क्रोमियम आपका +6 है और ये कन्वर्ट कर रहा है +3 में. तो दिस इज बेसिकली रिडक्शन. अच्छा भाई पहले इसी को देखते हैं. सो दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन. नाउ सी, अगर यहाँ पे देखें हम पूरा कंप्लीट देखें तो व्हाट वी डू, हमें सबसे पहले यहाँ पे आपको देखा जाए तो ये +6 है, ये +3 है और यहाँ पे 4 टाइम्स ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 टाइम्स ऑक्सीजन, बट हाइड्रोजन यहाँ पे 4 टाइम्स है. सो फर्स्ट व्हाट वी नीड, अगर हम देखें तो वी हैव टू बैलेंस द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो फर्स्ट हम इसको यहाँ पे करते हैं, बैलेंस हाइड्रोजन ऑक्सीजन. ठीक है, ऑन बोथ साइड्स. हाउ टू बैलेंस दैट? सो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखो भाई यहाँ पे H आयंस किस तरफ है? प्रोडक्ट साइड है. तो इनको बैलेंस करना तो मुझे यहाँ पे भी क्या लेने पड़ेंगे? H पॉजिटिव आयन लेने पड़ेंगे. तो कैसे होगा भाई हमारे पास? देखो CrO4 2 नेगेटिव, मैंने लिए इस तरफ H पॉजिटिव आयन. क्लियर? उसके बाद यहाँ पे CrOH4 1 नेगेटिव. अब इस तरफ कितने आयन है H पॉजिटिव के? 4. यहाँ पे क्या किया भाई मैंने 4 H पॉजिटिव आयन लिए. ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या भाई? ये हो गया हमारे पास एटम्स बैलेंस. नाउ एटम्स आर बैलेंस्ड. 4 ऑक्सीजन हियर, 4 हाइड्रोजन हियर एंड 4 ऑक्सीजन हियर. यहाँ पे अब देखो तो पहले ही ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस था. अच्छा भाई, व्हेन एटम्स आर बैलेंस्ड वी हैव टू ट्राई टू बैलेंस चार्ज. आप करते हैं यहाँ पे बैलेंस चार्ज. सो फॉर बैलेंस चार्ज टू कैलकुलेट, तो भाई ये देखो यहाँ पे टोटल चार्ज
ये रहा यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज, टोटल चार्ज 4 पॉजिटिव चार्ज। अब टोटल निकालो, यहाँ पे कितना है, +2 चार्ज, बट यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है। तो मुझे बताओ हम किसको यहाँ पे +2 में क्या ऐसा ऐड करें कि हमारे पास यहाँ पे -1 आ जाए। तो अगर +2 में हम, हाँ भाई बताओ, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर रहे हो आप। ऐसा क्या करें, अगर हम यहाँ पे -3 करें ना, तो -3 + 2 इज इक्वल टू -1। देखो ना, -3 से अगर 2 निकालें तो क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे 3 और इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन पे 3 नेगेटिव चार्ज, 3 नेगेटिव और +2 इज इक्वल टू -1, -1 यहाँ पे, -1 यहाँ पे। तो हमने क्या किया, चार्ज को भी बैलेंस किया। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन लगा दिए यहाँ पे। तो भाई ये वही इलेक्ट्रॉन है, ये वही 3 इलेक्ट्रॉन है जो ऐड हुए हैं, यहाँ पे। और हमारे पास क्रोमियम +6 से +3 हो गया। ये वही 3 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ही तो ले रहा है क्रोमियम, ए ऐड कर रहा है, और हमारे पास जो क्रोमियम है उसी वजह से +3 हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी पहले क्या था, +6 था। इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन जो गेन किए थे, ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो गए। तो हम इसको भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, ये भी हमें यहीं पे बताता है। नाउ वी हैव बैलेंस्ड एटम, बैलेंस्ड चार्ज। Now we have balanced atom and balanced charge. Now we have a complete set of what? हमारे पास रिडक्शन हाफ हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की। एक बार फिर देखेगा, ठीक है। अब भी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हमारे पास क्या है, तो वी हैव SO3 2 नेगेटिव ऑन द लेफ्ट साइड, और राइट साइड पे क्या भी हमारे पास SO4 2 नेगेटिव। अच्छा भाई, तो अब इसको भी देखें, तो फर्स्ट व्हाट वी नीड हियर, वी नीड टू बैलेंस ऑक्सीजन। And if the reaction is saying, जैसे मैंने पहले कहा था, it is basic solution, understand? So when we are saying basic solution, so in that case we have to also balance hydrogen. Okay, hydrogen ऑक्सीजन भी बैलेंस करना पड़ता है। तो यहाँ पे बता दूं आपको मैं, तो देखो यहाँ पे करना क्या कि जिस तरफ हमारे पास ऑक्सीजन कम है ना, उस तरफ वाटर लगाना पड़ेगा, उस तरफ वाटर लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई, सबसे पहले बैलेंस ऑक्सीजन ओब्लिक हाइड्रोजन, पहले वही करते उसके बाद चार्ज करते हैं। तो भाई ये हो गया SO3 2 नेगेटिव, ठीक है। जिस तरफ ऑक्सीजन कम है उस तरफ वाटर लगा दो, ये वाटर रहा यहाँ पे। उसके बाद अब इस तरफ आपने वाटर लगा दिए, तो मुझे बताओ रिएक्टेंट साइड आपने वाटर लगाया, प्रोडक्ट साइड क्या लगाओगे बैलेंस करने के लिए? अगर आपने रिएक्टेंट साइड वाटर लगा दिए, प्रोडक्ट साइड आप क्या लगाओगे, यू विल एड H पॉजिटिव आयन, ठीक है। ये याद रखना कि इफ इन केस ऑफ बेसिक मीडियम, अगर आपका वहां पे ऑक्सीडेशन हाफ है, तो उसमें अगर हमारे पास लेस टाइम ऑक्सीजन है, तो ऐड वाटर टू दैट साइड इन ऑर्डर टू बैलेंस H पॉजिटिव आयन, एट द अदर साइड यूज H पॉजिटिव आयन। ओके, मतलब यहाँ पे H पॉजिटिव आयन जो वाटर के हैं, if you want to balance them, balance this. Okay, now first of all balance atoms. Now see, अगर हम बैलेंस यहाँ पे करें, और मैं यहाँ पे चार्ज भी करता हूँ, बैलेंस हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड चार्ज तीनों करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पे हमारे पास सल्फर था +4, और ये हो गया सल्फर हमारे पास +6। कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हुए भाई? यस, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए? 2। तो क्या यहाँ पे मैं, जैसे यहाँ पे मैंने पहले प्लस लिखा था, तो क्या मैं लिख सकता हूँ ऊपर यहाँ पे -2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, ठीक है। -2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ लिखूं तो क्या लिखूंगा, +2 इलेक्ट्रॉन, तरफ लिखूंगा तो -2 इलेक्ट्रॉन लिखूंगा। अच्छा भी पहले एटम पे फोकस करते हैं। 3 एटम यहाँ पे ऑक्सीजन के, एक यहाँ पे 4 और ये भी 4। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 टाइम्स, और इसको भी यहाँ पे 2 पॉजिटिव कर दो, हो गए भाई ये भी बैलेंस। तो हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, सल्फर बैलेंस, चार्ज अब देखते हैं। सो व्हाट इज चार्ज हियर, यहाँ पे टोटल चार्ज -2, यहाँ पे टोटल चार्ज 0, ये टोटल चार्ज ये भी -2, टोटल चार्ज इज इक्वल टू रिएक्टेंट साइड पे -4। इस तरफ आओ भाई, तो इस तरफ आए तो हमारे पास if we count here, then ये -2 चार्ज और ये +2 चार्ज, तो +2 -2 कैंसिल इज इक्वल टू 0 चार्ज। तो भाई अब मुझे बताओ यहाँ पे बैलेंस हुआ चार्ज या नहीं हुआ? ध्यान से बताना मुझे भी, या कोई मैंने एरर किया है?
मैंने एक एरर भी किया यहाँ पे, अगर एरर आइडेंटिफाई करते एरर करो आइडेंटिफाई। सर आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले डाल दिए। यस, देखो भाई यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये -2 यहाँ पे लिखा, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं और इधर लिखूं, देखो मैंने क्या किया था, अगर इधर लिखूं अब आपको थोड़ा समझ आएगा, ठीक है। अब देखो भाई ये -2 यहाँ से हट गया, ये प्लस माइनस कैंसल 0, ठीक है, बट अभी भी यहाँ पे -2 चार्ज है। और अगर आप यहाँ पे इसको नहीं लिखते क्योंकि माइनस था यहाँ पे, माइनस माइनस बिकम प्लस, ठीक है ना, माइनस भी चार्ज था यहाँ पे, जैसे यहाँ पे प्लस था ना, प्लस तो चार्ज माइनस, प्लस माइनस माइनस, हमने इसको -3 लिखा था, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आता, आपने नहीं देखा क्योंकि एल्जेब्रिक सम पूरा करते हो आप, तो यहाँ पे अब जैसे इस तरफ लिया मैंने तो आपको समझ आ गया कि यहाँ पे -2 चार्ज है, ये तो ये इसका +2 -2 कैंसिल हो गया, ये बचा -2 यहाँ पे और ये बचा -2, तो दोनों तरफ से -2 बैलेंस है। क्या अभी समझ आया? ठीक है, तो मतलब आप अगर दूसरी तरफ से लिखते, जब आप यहाँ पे अगर -2 लगा रहे हो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपको देखो भाई -2 इलेक्ट्रॉन है, तो इट इज बेसिकली आपका -2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे माइनस माइनस प्लस, ये +2 हो जाएगा, तो उस तरह से कैंसिल करके भी हमारा 0 0 आ सकता है, बट आपने ऐसे कर दो, इसको इजी बना दो कि यहाँ पे लिख दो एंड यू हैव अ बैलेंस चार्ज आल्सो, सो चार्ज इज आल्सो बैलेंस। बट अभी आपके पास इक्वेशन बैलेंस होगी, अभी बैलेंस नहीं हुआ। देखो ये बात क्या है कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, बराबर ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जब हमें लॉस और गेन इक्वल करना होता है, हमें पता है कि यहाँ पे अगर 3 हो रहा है, अगर यहाँ पे 3 हो रहा है, सो वी मल्टीप्लाई दिस बाय By 2. 2, और यहाँ पे अगर 2 हो रहा है, वी मल्टीप्लाई इट बाय 3, 3. 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6, दैट मीन्स जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, दिस इज इक्वेशन 1 आई एम सेइंग एंड दिस इज इक्वेशन 2, so what should we multiply by equation 1, sorry 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, so multiplication 2. 1 by 2 and multiplication 2 by 3. 3। अब बताओ ये दोनों इक्वेशन क्या होगी, Balanced. अब ये दोनों इक्वेशन क्या होगी, तो मैं थोड़ा सा नीचे लिखा हूँ यहाँ पे, प्लीज इसको देख लेना, तो आपके पास दोनों इक्वेशन क्या हो गई भी, सो पहली इक्वेशन कन्वर्ट हो गई, देखो भाई 3 से मल्टीप्लाई किया है, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बनेगा आपका 2 टाइम्स CrO4 2 नेगेटिव, उसके बाद 8 टाइम्स H पॉजिटिव, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, उसके बाद 2 टाइम्स OH4 1 नेगेटिव, ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन 3 से मल्टीप्लाई किया है, 3 टाइम्स SO3 2 नेगेटिव, उसके बाद वाटर 3 टाइम्स वाटर, आगे ले जाते हैं 2 नॉट 3 टाइम्स SO4 2 नेगेटिव, उसके बाद यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है ना, 2 3 6, 6 पॉजिटिव चार्ज प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा भाई अब आपने दोनों को क्या करना, ऐड करना होता है, रिडक्शन हाफ और अपने हाफ को दोनों को ऐड करो, तो ऐड करे भाई यहाँ पे ये 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड, ये 6 इलेक्ट्रॉन राइट साइड कैंसल, ठीक है। उसके बाद नाउ सी, सो आप यहाँ पे ओ चीज भी बैलेंस कर सकते हो आप, यू आर सीइंग हियर कि यहाँ पे 8 पॉजिटिव आइन है, यहाँ पे 6 पॉजिटिव आइन है, 6 पॉजिटिव आइन यहाँ से गायब, और यहाँ पे कितने बचे भाई, खाली 2 पॉजिटिव आइन बचे हमारे पास, ठीक है। ये भी देख सकते हो ना कि क्योंकि H पॉजिटिव आइन ये भी हमारे पास है, इनको भी बैलेंस करना पड़ेगा। अब बताओ भाई इसमें क्या होगा, यस नाउ अभी बनेगा, it is twice of CO4 2 negative ion plus thrice of SO3 2 negative ion plus 3 times water molecule, और ये क्या दे रहा है भाई यहाँ पे आगे, ये दे रहा है twice of CrOH4 1 negative ion plus thrice of SO4 2 negative ion एंड लेफ्ट इस यहाँ पे 2 और थे, 2 H पॉजिटिव आइन थे भाई, ये अगर आपको याद होगा तो ये 2 H पॉजिटिव आइन हमारे पास इस तरह से ही आएंगे। क्या भी ठीक हुआ? अब इसमें कुछ और है गड़बड़? नाउ No, सी, sir. बट आपको पता है कि ये 2 H पॉजिटिव आइन को बैलेंस करने के लिए कुछ कर सकता हूँ मैं, अभी कर सकते इसको आगे में, अब क्या कर सकते इसके आगे में, so what I can do further to this reaction so that
मुझे यहाँ पे बेसिक मीडियम में बैलेंस करना पड़ेगा। अगर मुझे इन दो पॉजिटिव आयन को हटाना तो क्या करूंगा मैं? अगर इन दो पॉजिटिव आयन को हटाना तो क्या करूंगा भाई? मैं रिएक्टेंट की राइट साइड पे 2H नेगेटिव आयन लगाऊं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? अगर मैं इस 2H पॉजिटिव को हटाना चाहता हूं तो मैं प्रोडक्ट साइड की वजह से मतलब ऐसे करूंगा। देखो मैं यहाँ पे आई एम यूजिंग हियर CrO4 2 नेगेटिव, ठीक है, प्लस थ्राइस ऑफ SO3 2 नेगेटिव, प्लस ये दो पॉजिटिव आयन हटाना चाहता हूं मैं। तो मुझे बताओ भाई पहले दो पॉजिटिव आयन कहाँ से आएंगे? अगर दो पॉजिटिव आयन यहाँ पे आ रहे हैं तो कैसे आएंगे और कहाँ से आएंगे? देखो इफ यू वांट टू ऐड हियर टू पॉजिटिव आयन, ओके, देन बेसिकली टू पॉजिटिव आयन आर कमिंग फ्रॉम वाटर, बेसिकली वाटर से आएंगे ना। तो अगर यहाँ पे हम बात करें, इससे पहले यहाँ पे 3 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल था, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और बैलेंस करूं तो ये बनेगा आपका 5 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल। 3 से 5 क्यों बना? देखो आपको इसको बैलेंस करना फर्दर, तो ये होगा भाई हमारे पास क्या, यू गेट ट्वाइस ऑफ CrOH4 नेगेटिव आयन, ठीक है। उसके बाद सल्फेट भी आपका 3 टाइम्स SO4 2 नेगेटिव आयन, और यहाँ पे लिखूंगा मैं ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव आयन, ठीक है। तो अगर आपको ये लास्ट वाली इक्वेशन समझ नहीं आ रही तो आप ऊपर तक करो, एंड दिस इज आल्सो बैलेंस्ड, ठीक है। तो ये होगी इक्वेशन आपकी, ठीक है। तो इसको भी हटा सकता हूँ मैं H पॉजिटिव आयन को, जिसमें लिखा था बेसिक मीडियम, तो आपने क्या किया, राइट साइड पे आपने OH आयन यूज किया और आपने वाटर यहाँ पे बढ़ा दिया, ये वाटर आपने यहाँ पे बढ़ा दिया और आपने राइट साइड पे OH आयन यूज किया, तो आपका ये बैलेंस हो जाएगा भैया आपका टोटल रिएक्शन। सो दिस इज द वे। एंड वन मोर थिंग दैट यू वांट हियर, व्हाट यू से, जैसे आप बोला यहाँ पे, देखो भाई क्या कहा मैंने कि आपने यहाँ पे क्या किया, मेरी बात ध्यान सुना। अब आप सोचोगे सर 3 से 5 कैसे बन गए, 3 से 5 कैसे बन गए? अगर 2 करते हैं ऐड तो 4 होते हैं, 4 होते हैं। तो भाई बेसिकली आपने जो H आयन ऐड किया ना, वो बेसिकली आपने दोनों तरफ किए हैं। यू हैव टू ऐड OH आयन बोथ साइड। देखो क्या होगा भाई, यहाँ से ऐसे बता दूं, अगर हम ट्वाइस ऑफ OH आयंस ऐड करते हैं और ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव आयन ऐड करते हैं तो बेसिकली क्या बनते हैं, ये बनते हैं हमारे पास ट्वाइस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। और ट्वाइस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, देयर आर 4H पॉजिटिव आयन एंड मतलब देयर आर 4H पॉजिटिव आयन, आप बता सकते हो यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अगर मैं बता दूं कि बेसिकली यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं, वे 2 वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गए, 3 से हो गए हमारे पास 5 वाटर मॉलिक्यूल। अब हमारे पास यहाँ पे हमने H पॉजिटिव आयन को तो कैंसिल किया, किससे, 2H नेगेटिव से, क्योंकि हमने OH नेगेटिव बोथ साइड किए थे। तो ये दो OH नेगेटिव इसको कैंसिल करेंगे, और इधर तो कैंसिल किया उन्होंने ना, बट बाकी यहाँ पे कौन कैंसिल, वो नहीं करेगा कैंसिल, तो यहाँ पे आपका OH जुड़ गया। दिस वे you can balance the OH negative, H negative or OH negative ion. So I think this step is last one is here that you need to understand. अभी next example आपको दे रहा हूँ मैं. So I am giving you one example more. So this is the one of the complex reaction example that I am forwarding here. Now a very important example. तो भाई अब मैं आपको example बताऊंगा एक और, which is I think is from, आपको identify भी करोगे, कहाँ से identify करोगे, कैसे करोगे, मतलब वो reaction हमारे पास कौन सी है। तो रिएक्शन इज हियर, देखिए भाई इसको कोशिश करेगा ट्राई करने का, बैलेंस करने का। रिएक्शन के भी हमारे पास, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो रिएक्शन कौन सी है। वी हैव 1 मिनट, Cl2 प्लस OH नेगेटिव आयन दैट गिव्स अस Cl नेगेटिव आयन प्लस ClO3 1 नेगेटिव आयन। कोई बताएगा भाई रिएक्शन कौन सी है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन दिस, इसकी टाइप्स कौन सी है भाई, ये टाइप कौन सी है, पहले आइडेंटिफाई ये करके बताओ मुझे। मैंने बताई थी टाइप आपको प्रोडक्ट्स में, 3 टाइप्स बताई थी मैंने, इंटर, इंट्रा और डिस्प्रपोर्शनेशन। यस, व्हाट इज टाइप, अगर नहीं याद है तो बताता हूँ। देखो एक और, ये देखो भाई, इंट्रा, क्लोरीन यहाँ पे 0 स्टेट में, क्लोरीन यहाँ पे -1 स्टेट में, यहाँ पे क्लोरीन निकालो भाई X, ठीक है, प्लस 3 -2 इज इक्वल टू -1, so X is equal to -1 plus 6 is equal to plus 5। यहाँ पे क्लोरीन क्या है भाई, +5। तो बताओ भाई एक एलिमेंट क्लोरीन 2 एक्सट्रीम स्टेट शो कर रहा है, एक
जिसमें वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक जिसमें वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। और जब एक ही एलिमेंट दोनों बार गेन लॉस करता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोरोडॉक्स, या इट इज सिंपल ऑफ, भूल गए भैया आप लोग, डिस्प्रपोर्शनेशन, यू फॉरगेट दिस। मैंने कहा था ना कि एक एलिमेंट मैक्सिमम दो आप या दो से ज्यादा स्टेट एग्जिस्ट करता है, जिसमें एक उसकी लोअर होगी, एक उससे हायर होगी। जिस केस में वो लोअर जाता है वो खुद वहां पे रिड्यूस करता है, और वही एलिमेंट उसी रिएक्शन में ऑक्सीडाइज भी कर रहा है। तो मतलब सेल्फ रिडक्शन, सेल्फ ऑक्सीडेशन, ऐसी टाइप इसको बोलते हैं भैया हमारे पास, क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये भैया आपकी टाइप है कौन सी, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन की। अब इसको बैलेंस करना है, so you can balance it by any method, either oxidation number method or ion electron method, but I suggest you to balance with what we can say ion electron method. So how you balance it, start balancing। तो मैं आपकी मदद करता हूँ। सबसे पहले इसके हाफ निकालते भी, तो पहले रिडक्शन हाफ निकालो भी। तो रिडक्शन हाफ देखें तो एक आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लोरीन है, वो कन्वर्ट कर रहा है जीरो स्टेट से कहाँ पे भाई, क्लोरीन -1 में, दिस रिडक्शन हाफ। तो पहले क्यों नहीं इसी के पीछे बढ़ जाएं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले क्या बैलेंस करना पड़ेगा, एटम्स। तो बैलेंस एटम्स यहाँ पे ट्वाइस टाइम्स। ठीक है भाई, अच्छा भाई एटम बैलेंस हो गए। अब चार्ज बैलेंस, यहाँ पे टोटल 2 नेगेटिव चार्ज। तो ये 2 नेगेटिव चार्ज कैसे आ रहा भाई, यहाँ पे जब क्लोरीन हमारे पास यहाँ पे Cl2 जिसके पास 0 चार्ज है, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब जाके यहाँ पे Cl2 1 नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब आप देखो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बैलेंस। So charge is balanced, atoms are also balanced. So this is balanced equation, okay. Now this equation is balanced. Why? Because charge is also balanced. यहाँ पे 2 नेगेटिव, यहाँ पे भी 2 नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स आर बैलेंस्ड, एटम्स आर बैलेंस्ड। तो पहले तो बैलेंस कर दिया मैंने, इजी था इसलिए क्या मैंने। अब आप बताओ ऑक्सीडेशन हाफ में कौन सा स्टेप आएगा, तो वहां पे भी कौन सा आएगा भाई, ये रहा हमारे पास क्लोरीन, क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज हो रहा ना। तो क्लोरीन क्या कन्वर्ट करा भाई, इट इज कन्वर्टिंग टू ClO3 1 नेगेटिव आयन। So there we need to balance not only chlorine but also oxygen. और जब बात होती है ऑक्सीजन की तो we need to add other things also. Now see, very important. तो सबसे पहले भी आप एक काम करो, क्लोरीन को बैलेंस करो, क्योंकि क्लोरीन बैलेंस करते हैं। तो मैं क्या करूं भाई, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे करें बैलेंस क्लोरीन। सो यहाँ पे आपको हो गया भाई Cl2, इस तरफ आएंगे ट्वाइस करना पड़ेगा, ट्वाइस ClO 1 नेगेटिव हो गया भाई पहले क्लोरीन बैलेंस। उसके बाद when we balance chlorine at the same time हमें ये देखते हैं यहाँ पे कि आप ये देखो भाई, तो क्लोरीन जब यहाँ से चेंज कर रहा है, 0 से कितने मारा भाई, ये 5 मारा है। तो मुझे बताओ भाई यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए, 5 या 10? यस, So 5. 10 या 5 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, ये बताओ मुझे। यस, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 5 या 10? जैसे यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, यहाँ पे कितने लॉस So हुए, 5. So 5. 1 3 5, 2 की बात करें, 2 की, 2 करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन लॉस। ये देखो 10 इलेक्ट्रॉन लॉस निकले ना यहाँ पे, इसलिए तो 10 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। तो अब आपको चार्ज बैलेंस करना पहले, तो पहले भी चार्ज बैलेंस करने से पहले एटम बैलेंस करो। तो आप बैलेंस क्या करो भैया आप, सो बैलेंस ऑक्सीजन। तो इन ऑर्डर टू बैलेंस ऑक्सीजन व्हाट यू डू, इस तरफ ऑक्सीजन हमारे पास है, इस तरफ लगाओ तो बेस, जो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे दिए OH आइंस। तो मतलब Cl2 plus OH negative ion gives us twice of ClO3 1 नेगेटिव। मैं 10 इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ यहाँ पे पहले, 10 इलेक्ट्रॉन। और जब हमारे पास यहाँ पे OH आइंस आ जाते हैं, आपको OH आइंस बैलेंस करना है। सो व्हाट यू शुड टेक दिस साइड वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इन ऑर्डर टू बैलेंस H पॉजिटिव आयन यू हैव टू टेक व्हाट, वाटर मॉलिक्यूल। आप H भी ले सकते हो बट H नहीं लेते, वाटर लेते हैं। सो यू हैव टू टेक वाटर मॉलिक्यूल। अब बताओ भाई बैलेंस करके, अब देखो भाई
अब मुझे एटम्स यहाँ पे बैलेंस है पहले, तो मेरे पास क्लोरीन 2 है यहाँ पे, क्लोरीन 2 है यहाँ पे, ऑक्सीजन हमारे पास पहले छोड़ दो क्योंकि पहले ऑक्सीजन देखो पहले, सॉरी, तो यहाँ पे 3 and 4 and there are nothing, so we have to balance it. तो सर भाई ऑक्सीजन नॉट द 6. सॉरी यहाँ पे 6 कैसे भाई, इसको बैलेंस करो भाई, बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, देखो जरा आप भी, बैलेंस ऑक्सीजन हाइड्रोजन, क्लोरीन बैलेंस है, अच्छा चार्ज को भी बैलेंस करना पड़ेगा, और OH आयंस की बात करते हैं। तो पहले ये देखते हैं यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स ने लॉस किए थे यहाँ पे, एक मिनट, ये 10, इसके ऊपर 5 पॉजिटिव चार्ज है, 10 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 10 अगर यहाँ पे लॉस किए तो ये हो गया, अच्छा वो यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, 10 तो 12 टाइम आप लिख देते हैं, 12 टाइम OH नेगेटिव, ठीक है, 12 टाइम्स OH नेगेटिव, अगर 12 हो गए यहाँ पे, ठीक है, 12 ही हो गए, 6 2 से 12, ठीक है। ये पता चला कैसे क्या मैंने यहाँ पे, क्योंकि चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए, तो अगर हमारे पास OH आयन की बात करें, यहाँ पे 2 H आयंस हैं, वो भी जोड़ दे यहाँ पे, तो 10 यहाँ पे और 2 12 हो गए, यहाँ पे 12 OH हो गए। अब 12 OH हो गए तो हमारे पास यहाँ पे 6 टाइम्स को किया, अब देखो बैलेंस करके, यहाँ पे हो गए 12 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, ये हो गए 6 ऑक्सीजन, और ये हो गए 6 12, हाँ ठीक है, 12 ऑक्सीजन हो गए भी टोटल। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 12 टाइम्स 6 to 12, ठीक है। अब चार्ज देखो भाई, तो चार्ज भी देखते हैं यहाँ पे, मैंने चार्ज भी बैलेंस किया होगा अगर यहाँ हुआ तो, यस चार्ज भी बैलेंस होगा यहाँ पे। सो सी चार्ज यहाँ पे 12 नेगेटिव, 12 नेगेटिव, यहाँ पे 2 नेगेटिव, यहाँ पे 10 नेगेटिव, हाँ तो 12 तो नेगेटिव दोनों तरफ आया, चार्ज इज आल्सो बैलेंस्ड, सो वी हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड चार्ज। देखो भाई कैसे बैलेंस किया आपने, किस तरह से माइंड यूज किया कि आपने इसको बैलेंस कर दिया और ये बैलेंस हो गई भाई। सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या अभी बैलेंस है भाई, क्या अभी बैलेंस है, इज दिस बैलेंस्ड, अभी क्या बैलेंस करने को रहा है, Yes sir, it's balanced. अभी का बैलेंस, अभी बैलेंस ही नहीं है, अभी एक चीज बैलेंस करने को रही है, यहाँ पे आपके 10 इलेक्ट्रॉन लॉस और यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन गेन, तो कहाँ बैलेंस हुई, अभी कहाँ सोच रहे हो। No sir, in terms of like I said, chlorine is balanced. इलेक्ट्रॉन्स अभी बैलेंस करने को, तो अब क्या करोगे, व्हाट टू डू, सो in order to balance it right now, what we do, अगर हम इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 10 हो जाए, 5 टाइम्स से, और इस इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 1 टाइम से, को समझ आया, तो बताओ भाई क्या होगा, तो इक्वेशन 1 बिकम 5 टाइम्स Cl2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स, हो गया इलेक्ट्रॉन बैलेंस, एंड 10 टाइम्स Cl1 नेगेटिव, ये हो गया आपका रिडक्शन हाफ, और ऑक्सीडेशन हाफ में ऐड करो, Cl2 प्लस 10 टाइम OH negative ion gives us twice of ClO3 1 negative ion, 10 electrons और 6 water molecule। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और कुछ कैंसिल होने वाला है, नो। नाउ आप मुझे टोटल करके बताओ कितना होगा। नाउ वी हैव 6 टाइम्स Cl2, ओके, उसके बाद 12 टाइम OH नेगेटिव, उसके बाद 10 टाइम्स Cl1 नेगेटिव, उसके बाद 2 टाइम्स ClO1 नेगेटिव, ClO3 1 नेगेटिव, एंड 6 टाइम वाटर मॉलिक्यूल। याद रखो भाई, अगर यहाँ पे 6 टाइम वाटर मॉलिक्यूल है, तो आपको पता है 6 टाइम वाटर मॉलिक्यूल में कितने OH होंगे भाई, देखो अगर 6 टाइम वाटर मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, तो इसमें कितने OH होंगे, बताओ भाई कितने होंगे, बोलो, 12 या 6, कुछ तो बोलो भाई, 6 ही होंगे या 12 होंगे, टेल मी एनीथिंग, नहीं बोला, बोलो भाई कितने होंगे, 6 में 6 ही होंगे। तो अब इसको देखो भाई, आप इक्वेशन को देखो तो ऊपर ये हमेशा योग होगी, अगर इसको मैं थोड़ा सा और देखूं तो भाई यहाँ पे देखो, इसको मैं नंबर में सिंप्लीफाई कर सकता हूँ,
ये भाई अभी क्या आया, ये आया 6:12:10:2:6, तो इसको मैं कम कर सकता हूँ ना, व्हाट आई कैन डू 3:6:5:1:3, तो मतलब क्या बनेगा, मतलब ये बनेगा हमारे पास, हम इसका लिख सकते थे थ्राइस टाइम, जितना आपको डिवाइड होता है तब तक देखो, अब 3:6 का रेशो तो बनेगा नहीं आगे, मतलब 3:6:5 का रेशो बनेगा नहीं, तो थ्राइस ऑफ क्लोरीन 6 times OH negative ion uses 5 times Cl 1 negative ion plus 1 times ClO 1 negative ion और 3 times water molecule। देखो ये हमारे पास होगी आपकी, ये भी आपकी इक्वेशन है, आप ऊपर लिखो नीचे लिखो, इसी को मैंने सिंप्लीफाई किया, सो दिस इज द मेन इक्वेशन, इवन दो यू कैन कैरी हियर, ये आपके 5 नेगेटिव चार्ज 1 नेगेटिव चार्ज 6 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे 6 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे 6 क्लोरीन, यहाँ पे भी 5 और 1 6 क्लोरीन, यहाँ पे आपके 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 to 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देखो भाई यहाँ पे बैलेंस है, 6 यहाँ पे और 3 यहाँ पे और आपके 3 यहाँ पे 6, आपका ओवरऑल ये भी बैलेंस हो जाता है। दिस इज द वे टू बैलेंस the another equation that is here, and this is example of disproportionation। हो गई दो एग्जांपल्स हमारे पास, ठीक है। तो अब आपको मैं यहाँ तक बता देता हूँ कि ये दो एग्जांपल हमने और कर दी, ठीक है। सो वी हैव टू प्रैक्टिस नंबर ऑफ एग्जांपल्स एंड आई विल टुडे गिव यू वन असाइनमेंट रिगार्डिंग, असाइनमेंट मतलब आपको प्रैक्टिस के लिए बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो एग्जाम में आई है। सो आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स, यू ट्राई देम, तो अगर नहीं होती तो उनका मैं सोल्यूशन बता दूंगा आपको, बट पहले आप खुद ट्राई करोगे। नाउ सी, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने कुछ एग्जांपल्स की बैलेंस करने की कोशिश की एंड वी डन विद द टू मेथड्स। अब कभी कभी क्या पूछा जाता है भाई, कभी कभी ये पूछा जाता है कि आप निकालो इक्विवेलेंट वेट, या आप निकालो किसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट निकालो, तो वो कैसे निकालते भी, यूजिंग द सेम कांसेप्ट, क्लियर। सो आई एम कमिंग टू द शिफ्ट, अब निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट। तो लिखो भी पहले क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है आप किसी भी एजेंट का रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ भाई इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, क्या है, तो इक्विवेलेंट, सो व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट, मैं आपको बता दूं ये क्या चीज है, ठीक है। आपने पीछे पढ़ा था एटॉमिक नंबर में, आपने वहां पे बताया था कि इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट फार्मूला क्या होते हैं, या मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्विवेलेंट फार्मूला क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो व्हाट यू डू, you have equivalent mass multiply by n which is called n factor, और आपको यहाँ पे n निकालना है, तो n is basically we can say what is that molecular mass by equivalent weight, ठीक है। आप इस तरह से निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बताता हूँ कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, ध्यान से देखना, अगर इसका मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूं तो ये 98 आता है, ठीक है, तो कैलकुलेट करना आता है। बट अगर मैं यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट वेट निकालूं दैट इज हाफ, हाफ क्यों, हाफ इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे 49 आए और n की वैल्यू 2 आई, मतलब ये बता सकते हो, हम ये प्रूव कर सकते हैं कि 98 इज इक्वल टू n इंटू इक्विवेलेंट वेट एंड n की वैल्यू 2 और 49 हमने निकाला, this is equal to 98, so that means आपको पता चला n factor हमारे पास है which is the ratio of molecular mass upon equivalent weight। So equivalent weight is how you can solve equivalent weight right now by using the concept। So सबसे पहले मैं यहीं पे बताता हूँ, इसी में बताता हूँ मैं। अब देखो ये अगर H2SO4 टूटता है ना तो क्या देता है, आप देख सकते हो ये twice of H पॉजिटिव आयन देता है और SO4 2 नेगेटिव आयन देता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस 2 इलेक्ट्रॉन गेन। जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हो तो वैलेंसी होती है भाई, वैलेंसी 2 होती है, ठीक है, वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। तो 2 वैलेंसी है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो n बता रहा है वो क्या बता रहा है, सो n इज हियर समटाइम्स सेड टू बी वैलेंसी, ठीक है। n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड इन द कोर्स ऑफ रिएक्शन। तो आप ये ध्यान देना कि n हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट या गेन या वैलेंसी हो सकती है।
अब इसी तरह से एग्जांपल बता रहा हूँ आपको मैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, लेट्स सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. We have a KMnO4 which is called potassium permanganate. It react with sulfuric acid H2SO4 and it gives us K2SO4, potassium sulfate, plus ये दे रहा है मैंगनीज सल्फेट. दिस इज लास्ट एग्जांपल, प्लीज स्टे हियर. वाटर दे रहा है और दे रहा हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन. ये रहा नेसेंट ऑक्सीजन. तो बैलेंस करना चाहूँ इसको मैं पहले. देखो यहाँ पे पोटेशियम 2 टाइम्स है, मैं इसको डायरेक्ट बैलेंस कर रहा हूँ. 2 टाइम्स मैंगनीज 2 हो गया, इसको भी 2 किया. जब मैंगनीज को 2 किया तो सल्फेट यहाँ पे 2, एक यहाँ पे 3, तो 3 सल्फेट हो गए. यहाँ पे 3 टाइम्स सल्फेट. हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो गया, 3 2 6. अब वैक्सीन को बैलेंस करते हैं. यहाँ पे 4 2 8, 8 और 12 दैट इज 20. यहाँ पे 4 और 8 12, 12 एंड 3 15. तो यहाँ पे 5 टाइम्स नेसेंट ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे. दिस इज अ बैलेंस स्टेट. अब नेक्स्ट, अब मुझे यहाँ पे ये बोला गया है कि मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इक्विवेलेंट वेट. मुझे ये बोला है कि आपको इक्विवेलेंट वेट निकालो किसका, KMnO4 को. कैसे निकालूंगा, देखो भाई ये सोचना है. तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है इक्विवेलेंट वेट निकालने का. अगर आप देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहूँ मैं तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा यहाँ पे, व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट फार्मूला. इक्विवेलेंट वेट क्या होगा भाई, बता सकते हो. इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला होगा, यह देखो भाई यहाँ पे EW निकालना चाहते हो, दैट इज मॉलिक्यूलर मास upon n. डिवाइड बाय n, मतलब n वैलेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट अगेन. तो भाई सबसे पहले यहाँ पे Mn की स्टेट निकालो, Mn की स्टेट +7, यहाँ पे निकालो +2. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए भाई यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है. बस यही 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए. व्हाट इज वैल्यू ऑफ n, n इज इक्वल टू 5. अंडरस्टैंड. तो मतलब जो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा उसको डिवाइड करेंगे किससे, 5 से. ठीक है. तो अगर हम KMnO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालें तो 5 से डिवाइड करेंगे एंड व्हाट वी गेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4. सिमिलरली आपको एक और एग्जांपल बताता हूं. दिस इज द लास्ट वन, Cr2O72 नेगेटिव. इसमें कोई बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं. ठीक है. प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास इक्वेशन वाटर मॉलिक्यूल. ये क्रोमियम जो हमारे पास इसकी स्टेट निकालते हैं, तो टोटल क्रोमियम 2 का, यहाँ पे टोटल क्रोमियम 2 का +6. तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, वैल्यू ऑफ n 6. Therefore equivalent weight of O7 is equal to molecular mass इसका अपॉन 6 आएगा यहाँ पे. ठीक, याद रखना 6. वैसे यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट गेन है. इसका इक्विवेलेंट by n की वैल्यू 2. And so you understand that how we calculate. So it is basically the number of electron lost again. You can calculate anyone. अगर कोई reducing agent है या oxidizing है, उसका दोनों का निकाल सकते हो. So that's all for today. Switching on of the next this topic, and I hope you will practice that. तो भाई करें. Thank you, sir.